this chapter, changes around us, we have studied about the natural changes, man-made changes, desirable changes, undesirable changes, and reversible and irreversible changes. While studying these reversible and irreversible changes, we have studied that often reversible changes are physical changes, while irreversible changes are chemical changes. But what are physical and chemical changes? Then our next heading is physical and chemical changes. The change in which only the physical property of a substance changes without changing its chemical combination is called a physical change. Means it's a physical appearance changes, its physical property changes, but the chemical composition remains same. If water is there, then its chemical combination is H2O. Means there is element hydrogen and oxygen, and its combination is H2O, two atom of hydrogen and one atom of oxygen. Then this is the chemical combination of water. In the physical change, for example, if water changes from liquid form to vapor form, gaseous form, then its physical properties are changing. Firstly, water was in liquid form, and after that vapor is in gaseous form. Then this is a physical change. Its chemical combination, that is H2O, is not changing. So that's why it is written, the change in which only the physical property of a substance changes without changing its chemical combination is called a physical change. In most cases, a physical change is reversible. As I have told you that often physical changes are reversible. Drying of wet cloths, tearing paper into pieces, chopping of wood, vaporization of water, condensation of water are examples of physical changes. Physical changes की सब examples. During the course of water cycle, water undergoes a physical change. Only the state of water changes from liquid to its gaseous form and returns to its liquid form in the form of rain. Means लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वेपर कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. देन इट्स केमिकल कॉम्बिनेशन रिमेन्स सेम व्हाइल इट्स physical property changes. No other property of water is affected, so it's a physical change. The characteristics of physical change are discussed below. जो physical changes की characteristics हैं, कैसे पता करेंगे कि वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज, तो बेसिकली इन पॉइंट्स को नोटिस करके आप जान सकते हैं कि ये चेंज और फिजिकल चेंज है आइदर केमिकल चेंज. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस नहीं बनेगा. वाटर है वाटर ही रहेगा, दूसरे फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में हो सकता है. पेपर है, एक पेपर का होल पीस है, उसको टर्न कर दिया जाए, उसको फाड़ दिया जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, स्मॉल पीसेस में, लेकिन उसका जो केमिकल कम्बिनेशन है वो सेम रहेगा. फूड का एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दे तो भी उसका फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं, क्योंकि केमिकल कम्बिनेशन रिमेन्स. न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होगा, नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में. वुड है वुड ही रहेगा, पेपर है पेपर रहेगा, वाटर वाटर रहेगा. दो सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज. The change can be reversed easily by removing the cause of the change. जो चेंज का जो काज है, जैसे हीट दे करके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया गया, तो हीट को हटा करके मीन्स उसे कूल करके, कूल डाउन करके वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो ऑफन ऐसा होता है कि फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है. द फिजिकल चेंज इज टेम्पररी इन नेचर. टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है. देयर may be some change in the physical properties of a substance such as color, smell, state, etc. during a physical change. Physical change के थ्रू उसका जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें चेंज आ सकता है, बट they are also physical changes because color, smell, state, these are physical states of substance के physical states हैं, और उनमें जो चेंज होगा वो physical change कहा जाएगा. So if any substance changing its color or smell state, then it is considered as physical change.
नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। जैसे कि तो पहले भी बताया गया कि कंपोजिशन जो है वो केमिकल कंपोजिशन वो सेम रहता, वो चेंज नहीं होता। द चेंज, केमिकल चेंज की भी बात शुरू कर रहा है, तो द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें एक न्यू सब्सटेंस, एक नए तरह का सब्सटेंस बनता है जिसका एक अलग केमिकल कम्बिनेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। मीन्स उसके नेम से ही क्लियर है कि केमिकल चेंज है ये, उसकी केमिस्ट्री में, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है। यू कीप ऑन हीटिंग शुगर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ब्लैक सब्सटेंस। अब अगर आप शुगर को हीट करते जाएं तो एक ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। द ब्लैक सब्सटेंस डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर। शुगर की प्रॉपर्टी उस ब्लैक सब्सटेंस में जो हीट करने पर शुगर को, चीनी को बनती है, उसमें वो शुगर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो जाता है, उसका जो केमिकल कम्बिनेशन है वो चेंज हो जाता है। द केमिकल चेंज कैन बी reversibly or irreversible. The chemical change can be reversible or irreversible. तो जो केमिकल चेंज होता है और ज़्यादातर केसेस में इरिवर्सिबल होता है, बट सम केसेस में रिवर्सिबल होता है। एज इसका पूरा एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम का, क्लास 11th में, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, बाकी ज़्यादातर केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन are some example of chemical changes and these are irreversible. फूड डाइजेस्ट हो गया तो फिर से उसे फूड ब्लड बन गया, ब्लड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स ब्लड में घुल गए, फिर उसको इकट्ठा करके फूड नहीं बनाया जा सकता, इरिवर्सिबल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग हो गया तो उससे फिर से आयरन नहीं बनाया जा सकता, दैट इज़ आल्सो इरिवर्सिबल। सो बेसिकली केमिकल चेंज होता है, इरिवर्सिबल होता है, लेकिन एक तरह का चेंज जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक में रखा गया है, वो एक तरह का केमिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। सो केमिकल चेंज बेसिकली क्या है ये हमने पढ़ना है। तो द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। Characteristics of chemical change are discussed here. The chemical change is a permanent in nature. The chemical change is irreversible. Often, new substances are formed during the chemical change. Chemical change के बाद न्यू सब्सटेंस बनते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरी तरह से अलग होते हैं जो न्यू सब्सटेंस बनता है। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज आइदर absorbed और given out during the chemical change। केमिकल चेंज में या तो एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में अब्जॉर्ब की जाती है या रिलीज की जाती है, बाहर निकाली जाती है। दैट इज एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये भी आप एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शंस हायर क्लासेस में 10th या 9th में पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट देयर आर गिवन दैट डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देन ये टेबल दिया हुआ है जो प्रीवियस इसकी जो फिजिकल और केमिकल चेंज हमने डिस्कशन किया उसके बेस पर फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है उसका एक टेबल बनाइए। ये टेबल आपको होमवर्क में लिखना है, लर्न करना है। देन इट इज़ योर टुडेज होमवर्क। नेक्स्ट इज वेज टू कैरी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। किस तरह से केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं और किस किस तरीक़ों से वो होते हैं। एंड आफ्टर दैट अ चेंज काज्ड बाय इंटरैक्शन, अ चेंज काज्ड बाय एनर्जी। मीन्स जो चेंज है उसको दो, अभी तक हमने देखा कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल, फिजिकल, नेचुरल, मैन मेड, इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया चेंज को। तो एक और भी तरीका है चेंजेस को कैटेगराइज करने का, वो यह है कि चेंज वो इंटरैक्शन से हो रहा है या एनर्जी के थ्रू हो रहा है। देन लास्ट में चेंज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चेंज काज्ड बाय इंटरैक्शन एंड चेंज काज्ड बाय एनर्जी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।